اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نے آیت نمبر 17 اور 18 پڑھنی ہے، تو اس میں دیکھتے ہیں ہمیں پہلے کون کون سے الفاظ آتے ہیں، ان کا ترجمہ ہمیں آنا چاہیے۔ اب تک ہم جتنا پڑھ چکے ہیں اس کے مطابق۔ تو مثلہم کا کیا ترجمہ ہو سکتا ہے فاضل؟ مثال، ہم ان کی مثال، ٹھیک ہے، مثلہم ان کی مثال، الذی حسیب جو، ما کا کیا مطلب ہے؟ جو نہیں، جو، اچھا، نور ان کے ساتھ، بنور ساتھ نور ان کے ساتھ نہیں، ترتیب آپ نے تینوں حصوں کا ترجمہ صحیح کیا ہے لیکن ترتیب غلط ہے۔ نور ان کے ساتھ نہیں، ان کے ساتھ، ان کے نور کے ساتھ، ان کے نور کے ساتھ، یوں ہے نا، ان کے نور کے ساتھ، ٹھیک ہے، مجھے ان کے نور کے ساتھ، اچھا، فی میں لا نہیں، فہم کا کیا ہوگا؟ پھر فا کا کیا ہوتا ہے؟ پھر ان کے وہ، تو یہ فا کا پھر کے علاوہ کیا ہوتا ہے؟ پس، تو پس یہاں پہ ہم کریں گے، پس وہ لا نہیں۔ تو اب ہم شروع سے دیکھتے ہیں ان آیات کا ترجمہ۔ مثلہم ان کی مثال، ان کی مثال، اچھا، کا مثلی، اس میں جو یہ تو ہے مثل، یہی والا مثل، یہی ہے مثل، ٹھیک ہے۔ یہ جو کا ہے نا، کا یہ آپ نے نوٹ کرنا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے جیسے یا کی طرح، جیسے مطلب تھا کما کا، یا کی طرح، اس کا مطلب کی طرح بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پہ میں کہتا ہوں نا، یہ کیا کہتا ہوں میں، مثال کے طور پہ قرآن میں آتا ہے کل حماری یحمل اسفارا، کا مثل الحماری ہے یا کل حماری ہے؟ کا مثل الحماری، کا مثل الحماری، اچھا ویسے اس کو چھوڑو، پھر یہ قرآن میں یہ لفظ نہیں ہے کل حماری۔ کل حماری اگر ہو تو کیا مطلب ہوا اس کا؟ اس کا مطلب ہوگا گدھے جیسا، گدھے کی طرح، ٹھیک ہے۔ حمار گدھے کو کہتے ہیں، حمار گدھے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کل تو بہرحال کا مجھے بھی کوئی اور مثال ذہن میں نہیں آ رہی، کا جہاں بھی آئے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کی طرح، ٹھیک ہے، یا جیسے، سمجھ آ گئی بات؟ ایک اور آگے لفظ آئے گا اگلی آیت میں ہی، اگلی آیات میں ہی، کا سیبن، سیبن، تو یہ کا ہے، سیبن لفظ ہے سیام، کیا لفظ ہے؟ سیام، سیبن، اور اس کے پیچھے کیا آیا؟ کا، سیبن کہتے ہیں بارش کو، ٹھیک ہے، سیبن بارش کو کہتے ہیں، اور اس کے پیچھے کا آیا ہے تو کیا بنے گا؟ بارش کی طرح، بارش جیسا، ٹھیک ہے، بارش جیسا یا بارش کی طرح، تو یہ کا مطلب ہوتا ہے۔ تو کا مثالی، مثال کی طرح، مثال کی طرح، ٹھیک ہے، یعنی ان کی مثال اس مثال کی طرح ہے، ٹھیک ہے، الذی جو، تو اب یہ کسی بندے کے بارے میں بات ہو رہی ہے تو ہم یہ کہیں گے اس شخص کی مثال کی طرح ہے جو، ٹھیک ہے، ان کی مثال اس مثال کی طرح ہے جو استوقد، یہ اس لفظ سے نکلا ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے ایندھن، اینٹیں،
ईंधन, ईंधन किसे कहते हैं? कमाई। हैं? कमाई में वो तो ईंधन, आमदनी होती है। ईंधन आमदनी। ईंधन सोने को ईंधन कहते हैं वो चीज जिससे आग जलाई जाती है। मिसाल के तौर पे किस चीज से हम आग जलाते हैं? लकड़ी से, माचिस से। लकड़ी से नहीं, वो चीज जिस पे आग जलती है, लकड़ी से, लकड़ी पे जलती आग लकड़ी को आग लगती है ना, चूल्हे कोयला। कोयले को आग लगती है, तेल को आग लगती है, गैस को आग लगती है, ये ईंधन है। ठीक है, तो जिस चीज को आग लगाई जाती है, जिस चीज से आग लगाई जाती है उसे ईंधन ईंधन कहते हैं। ठीक है, तो आप अपने अगर जुबान में मैं आपको बताऊं कि हम ये पुराना लफ्ज हो गया, खैर थोड़ा, बालन सुना है कोई? बालन, जी। ठीक है, ये ईंधन का हमारी जुबान में तर्जुमा है। ठीक है, तो आग जलाने के लिए ईंधन चाहिए होता है, इसके बगैर आग नहीं जलती। ठीक है, तो इस तव कदा का क्या मतलब है? ये तो इससे निकला है, इसका मतलब क्या होता है? ईंधन, ईंधन। ईंधन। तो इस तव कदा का मतलब क्या होगा? उस ईंधन, ईंधन दिया। ईंधन देना का क्या मतलब है? ईंधन देना मतलब ये कोई जिस पे आग लगी है वो चीज दी, लकड़ी। ईंधन देना, गैस देना। उर्दू में ईंधन देना कहते हैं आग लगाने को। ठीक है, ईंधन देना मतलब आग लगाना, आग जलाना। ठीक है, ईंधन दिया मतलब आग आग जला। आग जलाई। आग जलाई, या ईंधन दिया। कर का मतलब दिए। आप यूं भी कह सकते हो ईंधन दिया। नारा, नारा का क्या मतलब होता है? कद का मतलब आग। अच्छा उस्ताद जी, ये कद का मतलब कद नहीं, कद नहीं है ये, इस्तव कदा है, इस्तव कदा, ये पूरा लफ्ज है, कद अलग नहीं है। ये ईंधन दिया इसका पूरा मतलब। ईंधन दिया, नारा आग को। ठीक है, आग को ईंधन दिया यानी आग जलाई। ठीक है, फलम्मा, फलम्मा का मतलब होता है फा, फिर लम्मा जब, के लिए फिर जब, फलम्मा फिर फिर जब, अज़ाअत, ये इससे मिलते जुलते लफ्ज है ज़ौ। ठीक है, या ज़िया, ये तो नाम है। ज़ियाउर रहमान, ज़ियाउर रहमान जो लफ्ज है, ये ज़िया का क्या मतलब होता है? रोशन, रोशनी। ज़िया का मतलब होता है रोशनी। तो अज़ाअत रोशन हुआ। अभी बंद करो, अभी ना लिखो। अज़ाअत रोशन हुआ, साइन। ठीक है, ठीक है। मा जो जो हौलहु, हौल कहते हैं, हवा, हौल कहते हैं गिर्द को। गिर्द। हु, लहू नहीं, हु सिर्फ हु, वो जो वो या उस। ठीक है, उसके, गिर्द उसके। गिर्द। गिर्द का क्या मतलब होता है? इधर उधर मतलब कि इधर चक्कर मारना। ठीक है, तो आपने माहौल लफ्ज सुना है? माहौल, माहौल जी। उर्दू में एक लफ्ज इस्तेमाल होता है माहौल। उस्ताद भी यहाँ पर माहौल लगा हुआ है। माहौल, माहौल का क्या मतलब होता है? हमारे इर्द गिर्द जो चीजें हैं उन्हें माहौल कहते हैं। माहौल। तो ये माहौल लफ्ज इसी से निकला है, मा हौला, ये अरबी से आया है लफ्ज उर्दू में। ठीक ये है, उर्दू जुबान है, ये अरबी से निकली है। उर्दू के बहुत से अल्फाज अरबी से निकले हैं। तो मा हौल का क्या मतलब होता है? जो इर्द गिर्द ये हो, चीजें जो इर्द गिर्द हो, उसे माहौल कहते हैं। जो चीज हो रहा हूँ। हमारे इर्द गिर्द जो भी कुछ है उसे माहौल कहते हैं। ठीक है, तो मा हौलहु, जो गिर्द उसके, जो उसके इर्द गिर्द आप कह सकते हो, जो उसके इर्द गिर्द हो या था। यहाँ तक इसको देख लेते हैं। मसलहुम, उनकी मिसाल, कमसलिल्लज़ी, उस जैसी है जो
इस्तौक़दा या जिसने, जो या जिस भी हम कह सकते हैं ना, जिसने ठीक है, ईंधन दिया, जिसने इस्तौक़दा नारा, जिसने आग जलाई, ठीक है, जिसने आग को ईंधन दिया या जिसने आग जलाई, फलम्मा अज़ाअत मा हौलहु, फिर जब रोशन हुआ जो उसके इर्द गिर्द था, मतलब उसका जो माहौल था वो जब रोशन हो गया, अंधेरे में जब हम एक कमरे में अंधेरा हो, जब हम आग जलाते हैं, यहाँ पे लाइटर ही अगर ऑन करें तो हमारा माहौल जो होता है वो रोशन हो जाता है ना, तो ये यही बात यहाँ पे हो रही है कि इसका मतलब है कि बंदा अंधेरे में खड़ा हुआ था तो उसने आग जलाई तो उसका माहौल रोशन हो गया, उसका इर्द गिर्द रोशन हो गया। अच्छा ये ज़ो ज़िया इसका क्या मतलब है? ज़ौ रोशनी को कहते हैं, ज़िया भी रोशनी को कहते तो हैं। अज़ाअत का एक मतलब हुआ। अज़ाअत का मतलब है रोशन हुआ। ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये इसके करीब करीब जो मिलते जुलते लफ्ज़ है ना, ताकि आपको अज़ाअत का मतलब याद रहे। अज़ाअ ज़िया से निकला है, तो ज़िया तो आपको याद रहेगा ना, ज़ौ अगर याद रहे तो ये जो नाम होता है ज़िया उसी से। अच्छा, ज़हबा, ज़्यादा ज़हबा का मतलब होता है गया। गया, गया अल्लाह बिनूरिहिम, बिनूरिहिम का क्या तर्जुमा किया था हमने? नूर, उनके नूर के साथ, साथ। उनके नूर के साथ। अच्छा, नूर जो है ना, नूर, जी, अच्छा ज़हबा यहाँ पे पूरा नूर का नहीं, मतलब क्या है? उनकी रोशनी, रोशनी या बसारत। आंखें। जी ज़हबा का पूरा मतलब जी, ज़हबा का मतलब गया। वो गया। तो बसारत, कौन गया? अल्लाह, अल्लाह ताला गए ये बसारत बिनूरिहिम, उनके नूर के साथ, यानी उनकी आंखों का जो नूर है उसके साथ, उनकी बसारत अल्लाह ताला ने अच्छा, अल्लाह ताला उनके नूर के साथ गए, इसका क्या मतलब है? अल्लाह ताला उनके नूर के हम साथ। कहते हैं ना, हम उर्दू में कहते हैं कि अल्लाह ने उसकी बसारत ले ली, और ठीक है, आंखों की अल्लाह ताला रोशनी, उसकी बसारत ले गए, ठीक है, मतलब आंखों की रोशनी, अल्लाह ताला उसकी आंखों की रोशनी ले गए, ठीक है। अरबी में कहते हैं उसकी आंखों की रोशनी के साथ गए, के साथ गए का मतलब क्या है? उसको ले गए। बात समझ आ रही है? जी, जी, आ रही है समझ या नहीं? शाबाश। हम उर्दू में अपनी ज़ुबान में तो उसको इसी तरह ले गए, इस हाँ, तरह कहेंगे। हम इसका तर्जुमा यूँ करेंगे कि ज़हब अल्लाह बिनूरिहिम, अल्लाह ताला उनका नूर, उनकी रोशनी, उनकी नज़र ले गए, ठीक है। अल्लाह ताला ने उनकी बसारत सल्ब कर ली, छीन ली, कुछ भी हम तर्जुमा कर सकते हैं, लेकिन आपको ये समझ होनी चाहिए कि ये जो बिनूरिहिम है, उनके नूर के साथ जाने का क्या मतलब है? कि उनका नूर ले जाना। बात समझ आ रही है? जी, जी। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, अल्लाह ताला, ये जो ज़हाबा है, इसका ये अलग मतलब है क्या? ज़हबा का मतलब गया, गया, ठीक है। हाँ, ज़हब अल्लाहु, अल्लाह ताला उन की बसारत ले गए, ठीक है, अल्लाह ताला ने छीन ली उनकी बसारत, सल्ब कर ली। जी, वतारकहुम, और तर्क वतारकहुम, और तारक का क्या मतलब है? तर्क से है, ठीक है। तर्क करने का क्या मतलब होता है? तर्क छोड़, हम उन्हें तर्क किया उन्हें, छोड़ दिया उन्हें, छोड़ दिया, और छोड़ दिया। छोड़ दिया उन्हें, ठीक है। फी में में जुल्मातिन, जुल्म, ये जुल्मत से है, इसका मतलब है अंधेरा। अंधेरा, जुल्मत अंधेरा अंधेरा, जुल्मात अंधेरे, ठीक है। वो मैंने आपको ये पहले आ चुका है, जी मैंने आपको ये हदीस की मिसाल भी दी थी, अज़्ज़ुल्मु जुल्मात, ज़ुल्मातुन यौमल क़ियामह, जुल्म क्या अंधेरों में अंधेरे? होगा। जुल्मात में आपने लिखा अंधेरे, जुल्मात जमा है ना। तो जुल्मातिन ला यूसिब, हाँ, तो मिला, मिला के भी मिलाएंगे ना। फी ज़ुल्मातिन, अंधेरों में,
ٹھیک ہے, اندھیروں میں لا نہیں. یبصرون میں واو کا یا کا کیا مطلب ہوگا؟ وہ آگے بصر کا لفظ ہے, بصارت. یبصرون وہ بصارت نہیں رکھتے, مطلب وہ دیکھ نہیں سکتے, وہ دیکھتے نہیں. وہ یہاں پہ تو ہوگا نا دیکھتے, نہیں تو لا آئے نا. یبصرون کا مطلب ہوگا وہ دیکھتے ہیں. یبصرون وہ دیکھتے ہیں, لا یبصرون وہ نہیں دیکھتے. ٹھیک ہے. ذہب اللہ بنورہم, اللہ تعالیٰ ان کی نظر, ان کی بصارت لے گئے. وترکہم فی ظلمات, اور انہیں چھوڑ دیا اندھیروں میں. لا یبصرون وہ نہیں دیکھتے. ٹھیک ہے. سمن کا مطلب ہوتا ہے بہرے, بکمن گونگے, عمین اندھے. فہم, یہ فہم ہے, فہم پس ہم وہ لا نہیں یرجعون, یا کا مطلب وہ, اور آگے کیا لفظ ہے؟ کون بتا سکتا ہے؟ گیس کرو, گیس کیا لفظ ہو سکتا ہے؟ کس لفظ سے نکلا ہے؟ اردو میں قریب سے دیکھ کے کوئی فائدہ نہیں. بتائیں. میں نے آپ کو کیا بولا تھا زبیر, آپ بھی, کہ استاد کھڑا ہو تو کراس کوسچننگ نہیں کرتے. ہاں, کوئی بتا سکتا ہے؟ رجوع سے ہے, رجوع سے. رجوع سے ہے. رجوع کرنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ رجوع کرنا مطلب لوٹنا, واپس جانا. ٹھیک ہے, واپس پلٹنا, لوٹنا. وہ رجوع نہیں کرتے, وہ لوٹتے نہیں. ٹھیک ہے, وہ رجوع کرتے یا وہ لوٹتے نہیں, تو ادھر آ گیا نا. منافقوں کی بات ہو رہی ہے. میں بتاتا ہوں. سمن بہرے ہیں, بکمن گونگے ہیں, عمیون اندھے ہیں, فہم لا یرجعون پس وہ نہیں لوٹ سکتے, پس وہ رجوع نہیں کرتے. ٹھیک ہے.